one word which comes to your mind when you talk about Porter? Coolie. Coolie. One of the favorite, I think, back in 2014, हमें we raised funds quickly. तब मुझे ऐसा लगा कि we didn't had maturity to handle that kind of a money. 5 years in IIT Kharagpur, amazing set of people जिसके साथ में रहा. Again, I think उसके बाद was with banking for a couple of years with HSBC and then JP Morgan, and उसके बाद Porter हो गया. आपने जितने आसानी से कह दिया पोर्टर हो गया, आई डोंट थिंक that simple it was. There is hardly any relevance of what I've learned in IIT in what I do at work today. From a small town, from Bikaner, unicorn startup, we are so excited to know the journey. उस टाइम में एक जो हमें फिनोमेना की मदद मिली वो ये था कि उस टाइम काफ़ी सारे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे थे. तो देयर वाज फ्लिपकार्ट, ओला, टैक्सी फॉर श्योर, बुक माई शो, ये सब कंपनीज फंड उठा रही थी. तो हमें लगा कि इंडियन इकोसिस्टम काफ़ी मैच्योर हो रहा है. आइडियाज़ तो काफ़ी लोगों के पास होती है कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन द गेम चेंजेस. सो कैन यू से द ऑडियंस व्हाट इज यूनिकॉर्न स्टार्टअप? वैसे मेरे को लगता है कि इट्स नॉट अ यूजफुल थिंग. सेकेंड प्रॉब्लम वाज दैट कि स्पेशली northwestern part of India, illiteracy among drivers was huge. In 12th, I scored a very average percent, somewhere around 64-65%. Seriously? Yes. And you have cleared IIT? How come? Good thing happens to good people. Yeah. Hello everyone, welcome back to another episode of Recoding Myself, Stories of Growth and Inspiration with CA Chandni Karnani. Today we have a very important and special guest जिन्होंने प्रूव किया है सपने छोटे शहरों से भी देख सकते हैं. इट्स जस्ट वो सपनों को साकार करने के लिए वो जुनून चाहिए. तो आज हम आपके पास ऐसी कहानी लेके आए हैं जो कि सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की नहीं बल्कि उन सभी को इंस्पायर करेंगे जो कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं. कैसे बीकानेर जैसे छोटे से शहर से निकलकर एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोर्टर, जिन्होंने लॉजिस्टिक में एक रिवोल्यूशन ही ला दिया. इट वॉज सच एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया दैट दे हैव put so much value to the society. पोर्टर ने सिर्फ लॉजिस्टिक में एक नया डेफिनेशन ही नहीं बनाया है बल्कि हजारों ड्राइवर पार्टनर्स एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाया है. आज हम सुनेंगे कैसे उन्होंने एक सपने को रियलिटी बनाया, क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या सीखने मिला ड्यूरिंग द जर्नी. तो स्वागत है उत्तम डिग्गा, हु इज CEO एंड co-founder of Porter. So without wasting time, let's welcome him. Thank you so much for coming to Recoding Myself and giving your such a valuable time. I'm so honored to have you here. Thanks for having me. Looking forward to contribute to your wonderful channel and your journey. Thank you so much. And we are so excited to hear from you, from a small town, from Bikaner, and building a Porter, that to a unicorn company, unicorn startup. We are so excited to know the journey. So, again, I think Bikaner is not that small. But still. Again, I think I was not a very good student at school, always an average student. What was not too much into studies and all. But during when I passed my 10th, I thought I should take science. I followed what most of my friends did. And in 12th, I scored a very average percent, somewhere around 64-65%. Seriously? Yes. And you have cleared IIT? How come? Good thing happens to good people. Yeah. Because I was also an average student. अगर ऐसा पता होता कि यार 60-70 में भी IIT क्रैक कर सकते हैं तो अब वो चांस भी ले सकते थे. तो आई थिंक मेरी लाइफ में वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन आई वेंट टू कोटा फॉर अ ईयर. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड इमेंस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माय फैमिली, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली.
तो parent investing despite me being average, I think was something which I felt that it's a lot of trust which they have shown into me, and I need to be responsible for that trust. And I think that was 1 year where I thought that I would, चाहे मैं fail भी हो जाऊँ, I don't want to fail because of lack of trying. एटलीस्ट ट्राई तो करें. हाँ, तो मैंने बोला कि अपना बेस्ट दो, फिर जो होता है देखा जाएगा. एंड टच वुड लकीली IIT गॉट क्लियर्ड, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ एज सच. फिर उसके बाद 5 years इन IIT खड़गपुर, अमेजिंग सेट ऑफ पीपल जिसके साथ मैं रहा, एंड इट शेप्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. Again, I think उसके बाद was with banking for a couple of years with HSBC and then JP Morgan, and उसके बाद Porter हो गया. So I think that's broadly the journey. If you want to understand more in आपने detail. जितने आसानी से कह दिया पोर्टर हो गया, आई डोंट थिंक दैट सिंपल इट वाज. आजकल स्टार्टअप बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस से काफ़ी हटके है. ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने लॉसेस अगर हम देखें तो पहले ही वो शट डाउन कर देते हैं. एंड कमिंग टू स्टार्टअप्स, इट्स नॉट ओनली गिविंग वैल्यू टू द सोसाइटी, साथ साथ अगर आप पैसे भी कमा रहे हो तो साथ साथ आप गिविंग वैल्यू, गिविंग अ ब्रॉडर पर्सपेक्ट. मेरे को ऐसे पर्सनली लगता है कि मतलब स्टार्टअप हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आई थिंक दे आर नॉट दैट डिफरेंट as lot of people think. Again, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से, स्टार्टअप इज़ नथिंग बट कि हम एक बिज़नेस करने का नया तरीका, मतलब बिज़नेस एक डिफरेंट वे ऑफ बिज़नेस या डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेस मॉडल हम ट्राई कर रहे हैं. एंड अगेन आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि लास्ट 15-20 साल में स्टार्टअप हुए हैं. इवन लेट्स से अगर आज से 25-30 साल पहले टेलीकॉम में एयरटेल एंड डिफरेंट कंपनीज आए, ऑल दीज वर स्टार्टअप्स. जब इंडिया में मॉडर्न ट्रेड आया, ऑल दोज वर स्टार्टअप्स ऑल्सो, बट हम तब उनको स्टार्टअप बोलते नहीं थे. एंड लास्ट 15-20 ईयर्स में हमने काफ़ी बार इस टर्म को यूज़ किया है. तो अगेन अगर आप एक डिफरेंट बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने कस्टमर्स को एक डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर कर सकते हैं, या तो उनका एक्सपीरियंस बेटर करें या फिर उनकी प्राइस कम करें, तो आई थिंक दैट new way of doing business, new way of doing business is and startup. you taking risk also. Risk भी तो. बट अगर आप देखो कि मैं एक नॉर्मल शॉपकीपर हूँ या फिर एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, अगर मैं दुकान भी चालू करता हूँ कोई भी, तो आई थिंक उसमें भी अपने रिस्क हैं. तो रिस्क टेकिंग तो सब जगह है, हम सब अपने लेवल पे रिस्क लेते हैं. बट अगर बस इफ़ यू आर एबल टू थिंक डिफरेंट एंड इफ इट इज़ न्यू, देन लोग स्टार्टअप बोलते हैं. बट आप देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में भी डे इन डे आउट सो मैनी इंडियन SMEs कितना अच्छा नए न्यू वेज ऑफ थॉट्स लेके आते रहते हैं, तो वो भी अपने लेवल पे स्टार्टअप कर रहे हैं. करेक्ट. तो जितना स्टार्टअप ग्लैमरस वर्ड है, क्या वो उतना सिंपल है? क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप्स हमने देखे हैं कि फेल भी हो जाते हैं. तो आपके क्या चैलेंजेस थे इनिशियल लेवल पे? तो अगर आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ गुड चांस कि आप फेल होते हैं. एंड यूजुअली मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मेरे को बता रहे थे कि यार अगर 10 कंपनी आती है तो 8 या 9 फेल होती है, 1-2 ही सक्सेसफुल हो पाती है. तो आई थिंक यस चैलेंजेस रहे हैं. टॉकिंग अबाउट आवर जर्नी, मुझे वो आइडिया आया, द सिंगल आइडिया कि अरे कुछ करते हैं, कुछ पोर्ट्रेट जैसा कुछ, मतलब कुछ करते हैं. तो ये सब 2013 एंड में स्टार्ट हुआ, वेयर मैं मेरे को फाउंडर्स एंड कपल ऑफ अदर पीपल इन आवर फ्लैट, हमें लगा कि वी शुड स्टार्ट समथिंग न्यू. अब काफ़ी सारे फैक्टर्स थे इसके पीछे. वन, हमें लग रहा था कि हम जो जॉब में कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं लाइफ में. हाँ, तो हमें लगा कि जॉब हमें फुल्ली एंगेज नहीं रख पा रहा है. वी शुड डू बेटर इन लाइफ, एंड आई थिंक दिस इज़ द एज एंड टाइम जब हमें करना चाहिए. उस टाइम में एक जो हमें फिनोमेना की मदद मिली वो ये था कि उस टाइम काफ़ी सारे इंडियन कंपनीज इन न्यू स्टार्टअप्स
आ रहे थे, तो देयर वाज फ्लिपकार्ट, ओला, टैक्सी फॉर श्योर, बुक माई शो, ये सब कंपनीज फंड उठा रही थी। तो हमें लगा कि इंडियन इकोसिस्टम काफ़ी मैच्योर हो रहा है, अभी कुछ करेंगे तो इफ़ द आइडिया इज़ गुड, ऐसा मतलब वी वुड गेट इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड। तो दैट्स अदर थिंग। एंड थर्ड, एट अ पर्सनल लेवल, बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, मुझे लग रहा था कि 26-27 साल तक घर वाले शादी कर देंगे। तो मैंने बोला कि अभी ट्राई कर लेता हूँ, वरना बाद में तो 1-2 और साल scope बाद नहीं है। रिस्क लेने का एपेटाइट कम हो जाएगा, क्योंकि Right. व्हेन यू बिकम मैरिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। Correct. तो हमें लगा कि ये सही टाइम है। तो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स प्लेड अ पार्ट, एंड तब हमने वो लीप ऑफ फेथ लिया कि ट्राई करके देखते हैं कैसा होगा। तो आई थिंक हाँ, वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। This was the only idea, जैसे नहीं नहीं नहीं, लॉजिस्टिक वाला, did you have 2-3 different हमने plans? 3-4 आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया। हमने कार सर्विसिंग के बारे में सोचा, हमने सोचा कि हेल्थ केयर में कुछ करते हैं। हम पहले सोच रहे थे कि पैसेंजर मोबिलिटी में कुछ करते हैं, जैसे ओला और उबर करते हैं, बट Okay. तब रियलाइज़ हुआ कि ओला काफ़ी बड़ा है, हाँ, और right. टैक्सी फॉर श्योर भी था उस टाइम पे। तो हमें लगा कि यार हम तो मतलब ऑलरेडी 2-3 बड़ी कंपनीज बन रही है इस स्पेस में, तो हम कहाँ रह पाएंगे। तो जस्ट जब ऐसे एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, तो एक बार जब हम ऑफिस से आ रहे थे, मैं एंड प्रणव, तो हमारी नज़र ट्रक्स पे पड़ी, और हमें लगा यार काफ़ी सारे ट्रक्स हमें दिखते हैं बॉम्बे में। तब हम बॉम्बे में थे। तो हमने बोला कि चलो इनसे बात करते हैं, इनकी प्रॉब्लम समझते हैं, क्या पता इसमें कुछ बन जाए। तो धीरे धीरे फिर हम ऑफिस से पहले, ऑफिस के बाद हम दोनों काफ़ी ट्रकर से मिलते थे। तो हमने उनकी प्रॉब्लम समझी। हमें पता चला कि अगर मैं एक ट्रक वाला हूँ बॉम्बे में, तो मैं अगर कहीं से भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता हूँ, लेट्स से अंधेरी से भिवंडी जाता हूँ, तो मैं वापस हमेशा खाली आता हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे वहाँ right. पे कोई ट्रिप नहीं मिलता। Right. दूसरा, मैं भिवंडी अंधेरी में भी दिन के 4 से 5 घंटे वेट करता हूँ कि मुझे कब ऑर्डर मिले। Correct. तो हमें लगा कि यार ये तो ट्रक है जो 10 घंटे में 2-3 घंटे ही यूटिलाइज्ड है। तो इसके पास काफ़ी खाली समय है, इस खाली समय में काफ़ी ऑर्डर्स कर सकता है। Right. तो इस सोच के साथ जब हमने शुरू किया ये मॉडल, हमें 1-2 साल लगे टू वैलिडेट कि यार ऐसा हो सकता है। और जब बिज़नेस चालू किया तब हमें साइंस दिखने लग गए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो आफ्टर 1 और 2 years देन इट बिकम ईजियर। ओके, तो हाउ टू पिच, मतलब सारे ड्राइवर्स से बात करना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में इस कस्टमर को प्लेटफॉर्म में लेके आना, ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म में लेके आना, बिकॉज आई फील आइडियाज़ तो काफ़ी लोगों के पास होती है कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन द गेम चेंजेस। तो व्हाट वर द इनिशियल एग्जीक्यूशन वे? तो मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, तो फर्स्ट थिंग at least which I feel which is very important is कि it is important to be very dedicated and committed to the idea. काफ़ी लोग जॉब के साथ ट्राई करते रहते हैं, राइट, पैरेलली। हाँ पैरेलली। हम 1-2 महीने में हमने रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ना जॉब सही से कर पाएंगे, ना इस आइडिया को जस्टिस कर पाएंगे। तो ऑल ऑफ अस, इट स्टार्टेड फ्रॉम प्रणव, बट ऑल ऑफ अस इन 2-3 months वी लेफ्ट आवर जॉब्स। हमने बोला कि करना है तो कमिटेड होके शिद्दत से करना है इसको। फिर सेकेंड थिंग इज, अगर आप वंस आप कमिटेड हो, आप फुल टाइम कर रहे हो, एंड बिजनेस के अपने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको थोड़ा रेजिलियंस दिखाना होता है। एंड इफ़ यू आर रेजिलियंट इनफ, तो एटलीस्ट यू मेक अ फेयर अटेम्प्ट टू ट्राई एन आइडिया। हो सकता है आपने आपके सारे इनपुट सही दिए, फिर भी देयर वर सर्टेन चैलेंजेस इन द मार्केट एंड द आइडिया, इसके कारण वो क्लिक नहीं हुआ, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी वेरी सेटिस्फाइड कि यार आई डिड माई बेस्ट। एंड काफ़ी बार फेल होने के बाद भी द एक्सपोजर विच यू गेट इन ट्राइंग अ न्यू थिंग्स विच इज़ सो वैल्यूएबल। तो अगर इसके बाद आप वापस कोई दूसरी जॉब भी करते तो ये एक्सपोजर आपको हेल्प करता। तो मेरे को मतलब अगेन आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कमिटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेजिलियंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मतलब काफ़ी बार जब मैं मेरी जर्नी को अगर लुक बैक करूँ तो आई थिंक जॉब छोड़ना फॉर एग्जाम्पल वॉज वन ऑफ द बिग थिंग।
बट And that too in top companies after IIT, matlab, you will be having a good salary at that time also. यस, तो वो छोड़ना is a very big task and challenging. हाँ तो अगेन आई थिंक 2-3 चीज़ें यहाँ पे हुई. वन इज़ कि जब मैंने सोचा कि ठीक है यार, मेरी अभी JP मॉर्गन में लेट्स से सैलरी एक्स की सैलरी जॉब है, Hmm. तो अगर मैं 2 साल कोई आइडिया ट्राई करता हूँ, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? लेट्स से फेल हो जाता है, उसके बाद क्या मुझे कैसी जॉब मिलेगी? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वापस एक्स की तो मिल ही जाएगी. Right. यार ख़राब से ख़राब क्या हो सकता है? 10% एक्स, 10% कम मिलेगी, 90% ऑफ एक्स की मिल जाएगी. खोने को क्या है? You have हाँ, analyzed that तो मैं part. बोला कि यार अगर इफ़ दैट इज़ द एब्सोल्यूट वर्स्ट आउटकम कि यार Right. 2 साल मैं कमाऊंगा नहीं और उसके बाद मुझे एक्स सैलरी की ही वापस जॉब मिलेगी, हाँ हाँ. तो मैं बोला लाइफ में तो आई थिंक 30-40 साल काम करते हैं. इन दैट 2 years आई थिंक इट्स अ रिस्क विच वी कैन टेक. तो Correct. काफ़ी बार जब हम इनिशियल फेज में होते हैं तो हम रिस्क को काफ़ी ज़्यादा वे करते हैं, Hmm. पर एक बार हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि यार एब्सोल्यूट ख़राब क्या हो सकता है और उसकी प्रॉबिलिटी क्या है. Hmm. अगर आपको लगता है कि यार ख़राब टू मी 2 साल काम मतलब सैलरी नहीं ड्रॉ करना और उसके बाद वापस एक्स सैलरी में जॉब लग जाना वॉज द एब्सोल्यूट बेस्ट. और मुझे लगा कि यार आई कैन लिव दैट कॉन्सिक्वेंस एंड आई थिंक उससे थोड़ा और करेज आता है टू ट्राई एंड लीव योर जॉब एंड कमिट फुल टाइम. So, what about the family support? Because उनकी सपोर्ट बिना भी कुछ नहीं होता. उनको पिच करना, सबसे पहले तो इन्वेस्टर को पिच करना या फ्रेंड्स को पिच करना, को फाउंडर्स को पिच करने से पहले आपको फैमिली को पिच करना पड़ता है. तो हाउ यू अटेम्प्ट दैट? So I consider myself lucky in that कि I have a family which supports a lot. तो one of the big thing, हमारी joint family है, तो one of the big thing which I wanted to, I was hesitant initially कि यार मैं ताऊ जी से कैसे बात करूँ. करेक्ट. पर टू माई सरप्राइज जब मैं ताऊ जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मतलब देखो तुम्हारी जॉब तो अच्छी है, हाँ. बट अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ये करना चाहिए तो 1-2 साल कर लो. हम्म. एंड आई वाज सरप्राइज कि वो पहले कॉन्वर्सेशन में ही मान गए. हाँ. एंड क्योंकि उनका सपोर्ट था तो मेरे लिए ये आसान था. आई कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं एंड फैमिली का सपोर्ट ऐसा है, इसके कारण ये थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है. बट फॉर मी टचवुड इट वाज वेरी इजी. Because family showed you trust during your IIT exam, you took it so seriously, you cracked it, and इसमें भी trust दिखाया. I feel trust is also the main essence आपकी success के. That's correct, that's correct. I consider myself blessed कि मेरी फैमिली ने राइट मोमेंट्स पे मुझ पे ट्रस्ट दिखाया एंड आई थिंक वी आर लकी दैट इट वर्कड आउट बिकॉज काफ़ी बार वेदर इट्स IIT और क्रैकिंग लेट्स से पुटर द चांसेस ऑफ फेलियर वाज सो ह्यूज. But again I think I Somehow. consider myself lucky कि I overcome those. Correct. So, coming next to execution. Execution में drivers के साथ क्या challenges you faced? तो हमारे सबसे बड़ा पहले चैलेंज था बैक इन 2014 कि यार स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन वाज नॉट दैट ग्रेट. Right. उस टाइम पे ड्राइवर्स स्पेशली जो हमारे सेगमेंट वाले ड्राइवर्स हैं उनके पास फीचर फ़ोन होता था. Right. तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस हमें पहले लोगों को फ़ोन देना पड़ा. तो जब हम पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करते थे तो हम उनको फ़ोन देते थे, हम उनको सिम देते थे, तो हम बोलते थे कि यार हम आपको फ़ोन दे देंगे, इंटरनेट कनेक्शन दे देंगे, आप बस चलाइए. तो स्टार्टिंग में हमारा इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ. काफ़ी ड्राइवर्स ऐसे थे जो फ़ोन लेके चले गए, हाँ. वापस नहीं आए. बट हमें लगा कि दैट वाज इनिशियली नेसेसरी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के लिए करना था, वरना अदरवाइज हम आगे ही नहीं बढ़ पाते. तो दैट्स वन ऑफ द रिस्क विच वी टुक, दो इट वाज एक्सपेंसिव बट वी टुक इट. सेकेंड प्रॉब्लम वाज दैट कि स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इलिटरेसी अमंग ड्राइवर्स वाज ह्यूज. सो हमने हमारी पहली ऐप लॉन्च की ऑन पार्टनर साइड ऑन 2015. तब व्हाट हैपेंड वाज कि हमने देखा कि हमने ऐप लेके गए और वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ऐप को यूज़ करने में. देन वी लर्न कि हमें हमारी ऐप को कलर कोड और सिंबल कोड करना चाहिए. Oh, that's a great idea. जिससे कलर से समझ हाँ सके. कलर से सिंबल से समझ जाए. एंड क्योंकि उनके लिए ये ऐप रोज़मर्रा की ऐप है कि वो रोज़ सुबह आएंगे, इस पर लॉग इन करेंगे. तो वंस दे लर्न एंड गेट कंफर्टेबल इन
इन अ वीक टाइम और मे बी इन अ मंथ टाइम, तब आसान हो जाता है. बट टू डू दैट जर्नी, अगर इफ इट इज़ कलर कोडेड एंड सिंबल कोडेड, आई थिंक इट वुड बी गुड. फिर देन अगेन आई थिंक बैक इन 2016 वेयर वी रियलाइज कि यार जो ये पार्टनर्स हैं हमारे, उनके पास पैसों की काफ़ी तंगी रहती है, वो काफ़ी टाइट चलते हैं. तो इंस्टेड फॉर अ वीकली और अ मंथली सेटलमेंट, हमने डेली सेटलमेंट चालू किया. तो वी वर बैक इन 2016 वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज विच स्टार्टेड डेली Daily. सेटलमेंट. फिर उसके बाद आई थिंक काफ़ी सारे अदर प्लेटफॉर्म्स में, वेदर इट्स ओला, उबर, दे ऑल्सो स्टार्टेड दैट. एंड अगेन आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग डिलाइट फीचर बैक देन. तो अगर आप अपने कस्टमर को ढंग से समझते हो, उनसे जुड़े हुए रहते हो, तो आपको काफ़ी आइडियाज़ आती है कि उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं. अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो वो लॉयल्टी दिखाते हैं आपके प्रति, वेयर दे वुड कमिट मोर लॉग इन आवर्स, सारे ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं. सेम इज़ विद कस्टमर. तो हमारे कस्टमर्स एसएमईज हैं जो जिनको सामान अपने कस्टमर तक या पहुंचाना है. तो उसमें अगर उनको जब भी गाड़ी रिक्वायरमेंट हो, आप अगर गाड़ी दो और सही रेट पे दो, तो हमें लगता है उससे काफ़ी लॉयल्टी आती है. करेक्ट. तो थोड़ा सा फिर से पीछे जाना चाहूँगी कि हाउ यू पिच्ड ना, सारे कस्टमर्स को कैसे पता चला कि पॉटर इज़ देयर, द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, और आई कैन से फर्स्ट लोग क्यों ट्रस्ट करें आप पे. तो ऐसा था कि जब हम स्टार्ट किए तो मैं फील्ड पे घूमता था. प्रणव यूज टू कॉल, और फिर वो येलो पेजेस या फिर काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे देख के, लीड्स देख के कॉल करता था. तो ही यूज टू डू कोल्ड कॉलिंग, आई यूज टू डू फील्ड पे जाता था. तो फील्ड पे जैसे नॉर्मल सेल्समैन घूमते हैं, तो दुकान बाय दुकान आप जाते, आप बोलते कि सर देखो हमने एक नई सर्विस चालू की है, अगली बार आपका कोई भी डिलीवरी हो आप हमसे यूज़ कीजिए. ये आपको 25-30% सस्ता पड़ता है और हम 15-20 मिनट में गाड़ी लगा देंगे. तो इससे स्टार्ट किया. पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ऐसा होगा नहीं होगा, पर फिर कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं कस्टमर्स में जो बोलते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं. फिर अगर वो ट्राई करते हैं, उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो ऐसे अगर लेट्स से किसी एरिया में अगर 25-30 लोग आपको ट्राई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने देखा है यस, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो जाता है. फिर काफ़ी बार एसएमई जब मैं उनके पास जाता हूँ, तब वो मेरी बात नहीं सुनते, पर उनका कोई अगर फ्रेंड जो भी बिजनेसमैन है, वो बताता है कि मैंने पोर्टर यूज़ किया और उसकी एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तो दैट पब्लिसिटी इज़ फार मोर रिलायबल. तो देन एसएमई ज़्यादा ट्राई करने लगते हैं. धीरे धीरे ऐसे पूरा ये चक्का चलता है. सो द फर्स्ट ईयर जो आपने जो विजन देखा था, हाउ मच इट वाज क्लियर टू यू कि 5 years लेटर ये हो जाएगा, या 10 years लेटर दिस विल बी अ यूनिकॉर्न कंपनी या यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ये आपने मैनिफेस्ट किया था? टू बी ऑनेस्ट, जब हमने चालू किया था तो हमें नहीं पता था कितना बड़ा हो जाएगा. हमें ऐसा लगता है कि जर्नी वैसा है कि अगर आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारी फॉग है या धुंध है, तो जैसे जैसे आप चलते जाते हो आपको वापस 200 मीटर दिखता है, आप और चलते हो आपको 200 मीटर और दिखता है. अब 10 साल में जब आप पीछे देखते हो तब आपको पता चलता है कि यार कितना बड़ा पहाड़ चढ़ लिया. करेक्ट. तो हमारे लिए जर्नी थोड़ी वैसी रही है कि हमें लगा कि चलो हमें इतना दिख रहा है, इतना कर लेते हैं. फिर जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपके वेंटेज पॉइंट डिफरेंट हो जाता है, आपको ज़्यादा चीज़ें दिखने लग जाती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती है. फिर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पे कैपिटलाइज करते हो और फिर वापस इन्वेस्ट करते हो, वापस ग्रो करते हो. तो ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी हमने जी है, रादर देन वेरी विजनरी. तो हम हमेशा 2-3 साल का सोचते हैं, कोशिश करते हैं उसको एग्जीक्यूट कर लो, एंड next 2-3 years is that's how we short term plan. basis में आप चलते हो. Yes. तो talking about the investors, जब वो पहली बार आप इन्वेस्टर्स के पास गए, how was the feeling and how you pitched it, क्या प्रिपरेशन की थी उसके लिए, एंड जो क्लियरिटी, क्योंकि अपने माइंड में पहले अपने क्लियर होंगे तो इन्वेस्टर्स क्लियर होंगे, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, द फर्स्ट एक्सपीरियंस? तो टू बी ऑनेस्ट वी वर वेरी नर्वस. तो हमारी पहली मीटिंग थी, तो पहले तो आई थिंक इन्वेस्टर चाहिए, तो आप काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ईमेल करते हो कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, हमारे नंबर्स ऐसे शेप अप हो रहे हैं, वुड यू लाइक टू कनेक्ट ऑन अ कॉल. How much time difference when you started Porter and the first So हमने visit? we left our job sometime between May June.
2014 हमारा सर्विस लाइव हुआ था 1st of August 1st of August, okay. and we started reaching out to investors somewhere around October November. Okay. So 3-4 महीने हो गए थे, हमें लगा था कि हाँ बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है. और एंड अगेन आई थिंक जब हम मतलब इन आर 20 जब हम 27-28 साल के होते तब तक हमारी इतनी सेविंग्स भी नहीं होती. Right. तो देयर वाज तो नेचुरल angel प्रेशर. initially you were funding yourself. तो बूटस्ट्रैप बोलते हैं उसको. तो Right, हम bootstrap. बूटस्ट्रैप फेज में चला रहे थे. तो हमने अपने अपने जो भी सेविंग्स थे 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए. फिर वन ऑफ आवर फाउंडर्स के पापा से भी थोड़े बहुत बोरो किए, which helped us to survive for next 6 to 8 months, and in 8 months we were able to close funding. Oh, great. तो पहले conversation was nervous, just to close your older point, कि पहला conversation was nervous, but again जब आप बताने लगते हो तो धीरे धीरे that nervousness goes away. Right. And then you were able to articulate कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. फिर after and एक इन्वेस्टर एक बार नहीं मिलता, उसको अच्छा लगता है वो 2-3 मीटिंग्स में वो डिसीजन बनाता है कि whether he needs to invest or not invest. Right. So Because what the they course have of to also see lots of factors, lots of that's points. correct. क्या मैनेजमेंट है, क्या टीम है, everything they That's need correct. to know. तो हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर्स थे की कैपिटल, Okay. विच इज़ अ मुंबई बेस्ड फंड जो शाशा मीरचंदानी लीड करते हैं. तो आफ्टर 2 or 3 मीटिंग्स it went really well. They liked us, they liked the company, and he took that leap of faith कि यार हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. आफ्टर रेजिंग इन्वेस्टमेंट आई थिंक इट बिकम्स वेरी डिफरेंट बिकॉज आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि खाली मैं नहीं सोचता, there are other people who are also backing your idea. So again, I think that confidence also helps to build. मतलब it's not just the money, but it's also the confidence and the validation कि आप में कोई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको लगता है कि हाँ काफ़ी अच्छा है. अच्छे के साथ साथ प्रेशर भी तो आता है. प्रेशर भी कि इन्वेस्टर्स को प्रूव करना है. एंड व्हेन यू टेक दिस वाज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, आफ्टर दैट भी आपने और भी इन्वेस्टर्स को क्योंकि हमारा अप्रोच किए. बिजनेस ऐसा था कि जिसमें हमें नेटवर्क सेट करना था ऑफ ट्रकर्स. हाँ. उस नेटवर्क सेट करने के लिए आपको नेटवर्क के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो यस यू आर करेक्ट कि हमें हमारे पहले 8-9 साल वी वर अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट. अगेन फॉर अस देयर वाज नॉट टू मच प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड, क्योंकि जब हम इन्वेस्टर्स को बता रहे थे कि हम पैसे किस लिए रेज कर रहे हैं तो हम क्लियर थे कि यार हम दिस इज़ वेयर द मनी बल्क ऑफ द मनी वुड गो. तो जब अगर वो देखते हैं कि जो बोल रहे हो वहीं पे पैसा जा रहा है तो आई थिंक इट्स एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर देम एज वेल. ओके. जनरली स्टार्टअप में देखते हैं कि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी इनिशियली. तो व्हाई सो मच लॉसेस स्टार्टअप अकर्स? तो ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज लॉस मेकिंग होती है. देयर आर ऑल्सो Mostly. एग्जाम्पल्स जहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल होती है. बट यू आर करेक्ट कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लॉस मेकिंग. तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो इनिशियली हमारा जो आइडिया है वो ये है कि यार मार्केट में गाड़ी 2 घंटे चलती है, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम चलाना चाहते हैं उस गाड़ी को 6 घंटे. राइट. अब डे 1 से 6 घंटे नहीं चलेगी. जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा तब वो 6 घंटे चलेगी. जब अब वो स्टेट पहुंचने में Right. 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट. बट अब जब आप कस्टमर को प्राइस करते हो अपनी सर्विस तो आप ये अज्यूम करते हो कि 6 घंटे चल रही है. अच्छा, you क्योंकि have to अगर- take the pricing accordingly. दैट्स करेक्ट. क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कस्टमर को बेनिफिट ही नहीं दिखेगा, तो वो आपको कभी यूज़ ही नहीं करेगा. तो टू ब्रेक दिस चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि यार मेरी सर्विस आज चीप नहीं है पर मेरे को कस्टमर को चीप देनी है, तो इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट. जैसे से व्हीकल 2 घंटे से 6 घंटे यूटिलाइज होने लग जाता है तब हमारे खर्चे लॉसेस कम हो जाते हैं. What is the current scenario? अभी कितने घंटे चल रहे हैं? अभी ऑन एन एवरेज आई थिंक आई वुड से 5 hours Okay. इज वेयर Still there is a scope. स्टिल देयर इज स्कोप, क्योंकि कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे 6 hours हिट हो गए हैं, कुछ सिटीज़ है जहाँ पे अभी भी 4 घंटे 3 घंटे है. तो Okay. ब्लेंडेड एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स 5 hours. Okay. And what about अभी जो upcoming cities, कौन से upcoming cities में पोर्टर आ रहा है? सो अभी हमने रिसेंटली विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रम लॉन्च किया था. आई थिंक नेक्स्ट सेट ऑफ सिटीज़ वी आर फाइनलाइजिंग. Okay. बट नेट इंटरनली जो हमने थ्रेशोल्ड बना रखा है कि एवरी सिटी विच हैज़ पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख
इज़ अ टारगेट सिटी फॉर अस. हमें लगता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है. है, लार्ज है. Okay. तो all those cities where the population is more than 25 lakhs, in 1 or 2 years, we would get to those. Okay. And what about going outside India also? Like, So we have launched Dubai 2.5 years ago. okay. तो वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा है. बिल्डिंग ऑन दैट सक्सेस हम और कपल ऑफ कंट्रीज इवैल्यूएट कर रहे हैं. Oh, great. What's next for Porter? What are the future plans? तो देयर तो अगेन आई थिंक हम आने वाले 1-2 साल में वी वांट टू फोकस मोर ऑन आवर यूजर्स कि Okay. यूज़र का हम एक्सपीरियंस और अच्छा कैसे करें, हाउ वी कैन बिकम इवन मोर रिलायबल एज अ सर्विस. एंड जो भी पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो हमसे अर्निंग करने हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं, हाउ डू वी मेक श्योर कि कंसिस्टेंटली दे मेक मोर मनी ऑन द प्लेटफॉर्म कंपेयर टू द मार्केट. सो अभी हम इस परस्यूट पे हैं. अगर हमें लगता है कि एंड इफ यू आर एबल टू एग्जीक्यूट दिस वेल, तो इन द सिटीज़ वेयर वी ऑलरेडी ऑपरेट विल ग्रो फास्टर. Okay. So I think that's the plan. थोड़ा बहुत we will add more cities, maybe more countries, but I think that's the core focus for next 1 or 2 What years. about going public? So Are you planning for that? honestly, I don't think that in next 2 years that would happen. Okay. तो हम ऐसा नहीं है हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें IPO जल्दी जाना चाहिए. But down the line. But down the line, हाँ, that's one of the possibility that we might do. बट एट द टाइम हम फोकस्ड हैं कि यार हमें ग्रेट बिजनेस कैसे बनाएं. पब्लिक जाना है नहीं जाना है, विल सी एज द टाइम प्रोग्रेस. Okay. So coming to the next part, आपके एक्सपीरियंस से, if someone want to start some new startup or entrepreneur or business, what kind of advice would you like to give them as per your experience? तो आई थिंक फर्स्ट थिंग आई वुड से ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. एंड मैंने देखा है कि काफ़ी बार पीपल अगेन थिंक अबाउट रिस्क टू मच. जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि यार हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वर्स Right. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वर्स. काफ़ी बार हम खाली सोचते रहते हैं पर वी डोंट डिफाइन दैट वेरी वेल. एक बार आप उसको डिफाइन कर लो, फिर देख लो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, देन आई थिंक आपको थोड़ा और Clarity भी मिलती है. क्लैरिटी मिलती है कि यार कैन आई डू इट और नॉट डू इट. Right. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई फील दैट वी वर ब्लेस्ड दैट कि हमारे को फाउंडर्स काफ़ी अच्छे थे. Team is also important. So getting the right team is very important. And काफ़ी बार I also see that कि people get into this tussle of कि यार मेरा आइडिया है, स्टेक्स किसका कैसे होना चाहिए. Right. मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी बार it's okay to be generous with everybody, क्योंकि if the company becomes big, तो a small pie of a big cake is still very big. Right. But a complete cake which is also very small, I think it's a small cake. So it's okay to be generous. It's okay to be generous. It's okay to feel that there is lot which we can share. But getting the team right, getting courage and understanding absolute worth क्या है, I think is important. So if people can keep that in mind, it would be good. But yeah, I think one thing which is also important is कि यार be very objective. One of the thing which I also observe कि काफ़ी बार आप किसी आइडिया पे 2-3 साल काम कर रहे हो, then you get carried away. काफ़ी बार it's also important to take a step back and see that क्या सही में ये काम करेगा या नहीं करेगा. तो हमें बायस भी नहीं हो जाना चाहिए अपने आइडियाज़ के लिए. इवैल्यूएट करना चाहिए कि टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि भाई मुझे लग रहा है नहीं हो रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, व्हाट्स द राइट टाइम. right time to quit and shift to another one. दैट्स करेक्ट. इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्योंकि जब तक आप अपनी फेलियर्स को एक्नॉलेज नहीं करोगे, आपके फेलियर्स नहीं है, मे बी इट्स एन आइडिया फेलियर, Right. तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे. That's very important point actually. Okay. Can you say now Porter is unicorn startup? This शायद ये 2024 में ही हुआ है, May 2024. So can you say the audience what is unicorn startup? हमारे लिए तो ये term भी नया है. वैसे मेरे को लगता है कि इट्स नॉट अ यूजफुल थिंग
to be a unicorn. I think it's just a threshold कि यार what is called as कि यार if your company's value is more than $1 billion, it is unicorn. ऐसा नहीं कि 900 million वाली companies भी अच्छी है and 1.1 billion वाली companies भी अच्छी है, but it's just a artificial threshold where people have drawn the line कि यार अब आप बन गए हो तो unicorn है. It is just it's just an indication that you are a decently large company now. I think nothing beyond that. Okay, that your all the efforts and direction, it's going on the right direction. It's a validation of a scale, milestone. मतलब उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. I think nothing changes a day before unicorn and a day after you. ये आप जैसे बड़े लोग ही बोल सकते हैं, हमारे लिए तो बहुत वैल्यूएबल होती है, हम तो सेलिब्रेट भी करते हैं उसको. And I think journey पूरी celebrate करनी चाहिए. It's not just one event. Okay, so just keeping time in mind, so let's go to a rapid fire round so that I can explore more from you. So are you ready for that? Sure. Okay, the first question will be, what you will prefer, buy a house or rent a house? Depending on what my mood is. If मैं बहुत ही rational या financial mindset से सोच रहा हूँ तो I would most probably rent a house. Okay. Because the economics are far better if you rent it. But again, I think buying a house most of the time is an emotional decision, and it gives emotional comfort if you have your own house. Okay. Maybe, I think, depends on what my mood is. Okay. So one book that have changed your perspective on business and or life. So there's this book from Clayton Christensen. This book name is How Do You Measure Your Life? How to Measure the Life. Okay. It's a very good book. It has definitely had an effect on me. I think the key takeaway, at least for me, from that book is कि again, I think हम काफ़ी बार रैट रेस में इतना उलझ जाते हैं, हम कभी स्टेप बैक लेके ये नहीं देख रहे कि हम लाइफ अगर हमने अच्छी जी या ख़राब जी उसको मेजर कैसे करें. nice. तो आई थिंक वो बोलते हैं कि यार जितने लाइफ आप अपने अराउंड इन्फ्लुएंस करते हो, दैट्स वन ऑफ द वेज टू मेजर योर लाइफ एंड व्हिच आई फील इज गुड. That should I will definitely read that book then. Okay, if not Porter, which industry would you like to explore? Would you love to explore? So मैं आपको इसका थोड़ा डिफरेंट आंसर देता हूँ कि आई एंजॉय लॉट ऑफ टाइम स्पेंडिंग विद माई किड्स. मेरे को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. तो इफ़ आई वॉज नॉट एट पोर्टर आई वुड बी ए किंडरगार्टन टीचर. ओह ग्रेट. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप क्वालिटी टाइम ही स्पेंड करते होंगे अपने बच्चों के साथ जितना भी टाइम मिलता है. यस, मेरी लाइफ में काफ़ी कम डायमेंशंस हैं. एक वर्क है, दूसरा फैमिली है. Okay. आई हैव अ वेरी लिमिटेड सोशल सर्कल एंड तो आई थिंक जो भी टाइम मुझे मिल पाता है आई वुड लाइक टू स्पेंड विद माई किड्स एंड वाइफ. ओके, तो जैसे आपने कहा कि किंडरगार्टन में आप टीचर बनना चाहते हैं या बच्चों से आपको इतना प्यार है, तो व्हाट आर द रिचुअल्स यू डू विथ योर किड्स और समथिंग लाइक क्वालिटी दैट डिफाइन एज अ क्वालिटी टाइम? So day-to-day ritual with my kids is, I think usually उनको सुबह ब्रश और नहलाता धुलाता मैं हूँ. Oh. So that's something which I enjoy a lot. And mostly 80% of the time I also make sure that सोने से पहले मैं घर पे पहुँच जाऊँ and I should read stories to them. Okay. So I think these are the two rituals which I do, and weekend पे हम कुछ ना कुछ activities करते रहते हैं. तो this is, I just make sure कि ये rituals कर लूँ, which makes my day, and अभी तक तो सब लोग बच्चे भी enjoy करते हैं, तो I think it's That's good. very nice. At least everyone should do in spite being busy. नहीं, I think everybody is different, तो people should do what they like. This is what I like, so I But do. I feel बच्चे बड़े हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा. One should follow this. Coming next, one thing you learned in IIT and that is still helping you. There is hardly any relevance of what I've learned in IIT in what I do at work today. But if I were to pick one, I feel that IIT makes you think objectively on certain thinkings. You would question more things कि ऐसा क्यों है, क्या है, and so forth. So I think that has helped, because a lot of time even in business
काफ़ी बार चीज़ें एक तरीके से चल रही होती हैं, एंड व्हेन यू पोक इट कि ऐसा क्यों है, एंड व्हेन यू बिकम क्यूरियस अबाउट इट, दैट्स वेयर आई थिंक इनोवेशन कम्स इन. आप नई राइट चीज़ें तभी डिस्कवर करते हो व्हेन यू क्वेश्चन थिंग्स. सो मेरे को लगता है दैट्स वन थिंग वेयर आई फील दैट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द करिकुलम, बट आई थिंक वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा था, प्रोफेसर ऐसे थे विच एनकरेज दिस, एंड आई थिंक फिर वो एक हैबिट बन गई विच इज़ गुड. ओके. सो एक और चीज़ जो शायद होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. अभी तक जितने जितने देर की कन्वर्सेशन में मुझे ये फाइंड आउट मैंने ये किया है कि यू हैड द माइंड सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ, कि प्रॉब्लम को कैसे, हाउ टू लुक द प्रॉब्लम. तो वही वही मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन यू लुक इट फ्रॉम अ वेरी ऑब्जेक्टिवली, राइट. तब आप क्वेश्चन करोगे ये ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों बैठे हैं, सो एंड सो फोर्थ. So I think that's where it is. Same Okay. thing. The next one would be one habit that helps you to stay productive every day. Not speculate. Okay. Just try to be in the present moment as much as possible. वरना हम काफ़ी बार thoughts and energy या time waste कर देते हैं just speculating on something which might or might not happen. So don't speculate too much. Be in the present. Be attentive. Be focused. Okay. Okay. One piece of advice that you would like to give someone who's starting a business. Trust yourself. Okay. One mistake you have made during the journey, if you look back, and that turns to be a great lesson. There are hundreds of mistakes, hundreds of Of lessons. one of your favorite. But one of the favorite, I think, back in 2014, हमें we raised funds quickly. मतलब सीड हुआ के कैपिटल के साथ, फिर पीक 15 के साथ वी हैड सीरीज ए विद इन 3-4 months. तब मुझे ऐसा लगा कि वी डिडंट हैड मैच्योरिटी टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ मनी. Okay. तो हमने ना काफ़ी जगह फोकस नहीं रहे, हमने 2-3 बिजनेस आइडियाज़ पे एक्सप्लोरेशन चालू कर दिए. बट आफ्टर 1 year लेटर वी रियलाइज़ कि यार हमें फोकस रहना चाहिए था. क्योंकि अगेन गुड टाइम्स वुड कम एंड गो. एक साल पहले फंड्स काफ़ी थे, उसके बाद काफ़ी कम थे, एंड सो फोर्थ. तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे फोकस, एंड I think when money comes to you, it's important to be responsible with it. So I think Right. that's one of the mistakes which I did in 2015. Okay. Okay. The one word which comes to your mind when you talk about Porter. One word, coolie. Coolie. That's a translation of our name. But personally, when I think about Porter, it's like my third child. Right. So I think Porter feels like Baby your to own you. baby. Yes. Thank you so much. Thank you so much for giving such a valuable insights from Porter. And I would like to know the experience with recoding myself even. Thanks for hosting me. This was useful. I think it doesn't look like that you have just started this journey. You look like a pro. Oh, thank you. So I think I would like to compliment you for that. And it was fun. I think बैठे टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला. Exactly. And I would like to say कि ये मैंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था कि आप आओगे तो मुझे ये लेना है पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. थैंक यू Thanks. सो मच. Thank you very much.